Today we are going to start some concepts of descriptive statistics, and particularly we will go for measures of central tendency, measures of dispersion, and measures of discrimination certification. ये ऐसे सिंपल टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपने जरूर सुना होगा, ठीक है। बट एक थोड़ा सा आइडिया अगर आप लोग हमको ये दें कि इसमें कितने लोग स्टैटिस्टिक्स के हैं पार्टिसिपेंट में, आप खड़े कर सकते हैं जो लोग स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से, सोशल साइंस बैकग्राउंड से, ओके ओके, साइंस बैकग्राउंड से, ओके। ये हमारे लिए अच्छा रहता है ताकि हम उसी लेवल से आपके साथ चलें। तो लेट्स स्टार्ट। These are the topics that we are going to discuss in this 1.5 hour tour. So, measures of central tendency. It simply means we need a central value for the given data set, or alternatively, we can say that in most of the time or for future uses, we sometimes require one value in place of whole of the data series. So as you can see, the value around which individual observations of the data series come to cluster is called the central value. And we are interested in finding this central value. So a measure of central tendency of a set of data is about obtaining this central value. Okay. So this is the idea. And among the 4 properties, or you can say characteristics of any data or distribution, this is the first one. Means initially whatever data we have, we try to obtain or we try to find its central value. The next one is, some of you might know that the next one is variation in the data. So that we will go into the measures of dispersion. This is the second characteristic. First characteristic, or the initial thing that we do with the data is to find this central value. There are generally 4 or 5 central values we will discuss in this lecture. So let's move to, these are the 5 central values. We will go one by one. The first 3 are the mostly used in terms of statistics, and the later 2 are supposed to be used in mathematics as well as in statistics. So the first 3 one is given more attention by the statistician, and later 2 should also be given the attention, but they are ignored. So let's move. Arithmetic mean, it is a very, very simple concept, and most of you already know it. This value is simply obtained by summing the given data. Means we will take the sum of the data and then we will divide the number of observations in the data. This is the simple concept of obtaining the mean. Okay. The second paragraph, sometimes we are given data with the frequencies. Frequency simply means that we are having the counts of the data. Okay. So what we do, we suppose given 5 numbers, and how many times these numbers are occurring, that is given in terms of frequencies. Okay. So 2 columns will be there, one for data or the characteristic values, another column will be for the corresponding frequency. So in such cases, we have to take the sum of the product of the variable with the corresponding frequency and then divide it with the sum of the total frequency. So this, you can see, this is the simplest formula we mostly use, which is summation of fi xi divided by summation of fi. You may also see this frequency is treated as a weight. We are giving the weightage to the variables. So if this fi is simply equal to 1 for all the observations, this is simple mean.
Okay. In place of frequency, we can take some other things as well. So that is called as weighted mean. Okay. So this is the idea. As you see, it is the most important and frequently used measure of the central tendency. सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग 4-5 चीजें पढ़ेंगे, बट उसमें से जो सिंपल भी है और मोस्टली हम लोग यूज करते हैं, दैट इज दिस सिंपल मीन और अर्थमेटिक मीन। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए वैसे तो हमने डिस्कस किया कि सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि उसमें आप जो भी ऑब्जर्वेशन दिए हैं उनको ऐड करो और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बट most of the time we will see that the observations are of large values, large in the not in the counting numbers but in the magnitude. So these three methods are particularly designed or invented for calculation, or we can say to simplify the calculation, right? So first one is direct method that we have already discussed, in which we take the summation of the observations and divide it by the number of observations. So this is simply a direct method. Other two methods are for using or ease of calculation. Okay. So we will see these as well. So we are just taking this example and we will calculate all these way three methods to this numerical example. ओके जैसे फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड है, सिंपली नंबर्स दिए हैं, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है। देखें ये सिंपली डेली इनकम है ऑफ 9 पर्सन, है ना, तो इसमें सिंपली 9 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं फर्स्ट जो है डायरेक्ट मेथड। तो सिंपली ऐड करेंगे और 9 जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज सिंपली डायरेक्ट मेथड। अभी इसमें अगर फ्रीक्वेंसी भी दिया होता तो फ्रीक्वेंसी में जैसे हमने डिस्कस किया कि फ्रीक्वेंसी का वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी विल डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वो इसमें नहीं है इस क्वेश्चन में, बट इन द सेम लाइन वी कैन डू इट एज वेल। तो इसका मीन आप देखें डायरेक्ट मेथड से, दिस इज 520। नाउ अनदर मेथड दैट इज कॉल्ड शॉर्टकट मेथड, दिस इज आल्सो यूज्ड। So in this method, what we do, we simply take the deviations of the actual given observations. From which value deviation should be taken? It is generally assumed that we will choose a middle value or a value between the given observation. Any value we can take, or we can also take a particular observation given to us. Okay, it doesn't matter. So here in this example, we are taking suppose that particular value is 500. Okay. So what we will do, we will take deviations, means xi minus a, that is 500 here. So each value, first one was 480. So 480 minus 500. This will give us first value of deviation, that is d. It is written in second row of the table. Similarly, we will take next d value, that is 350 minus 500. So we will get minus 20. In the same line, we will continue and we will obtain the deviation, that is d. Now in the formula, what we have done here, we just calculated basically the mean of this deviation, that is summation d divided by n. The number of observations जितने होंगे उतना ही डी का वैल्यू आएगा, इसलिए एन हमारा वही रहेगा। सिंपली आप देखें ए प्लस समेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन, इट मींस हम लोग डी वाले का डेविएशन का मीन निकाल रहे हैं, ठीक है, और जो भी उस डेविएशन का मीन आएगा उसको जो हमने अज्यूम्ड नंबर है दैट इज ए हियर 500, उसमें हम ऐड कर देंगे तो हमारा एक्चुअल जो डेटा था उसका मीन आ जाएगा। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि जो डेविएशन थे वो हमारे स्मॉलर नंबर्स मिल गए, है ना, तो ये हमारे लिए इसका प्रॉफिट है कि डेविएशन छोटे हैं उनका हम आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस मेथड के लिए आपको शॉर्टकट मेथड हो गया। ये सिंपली ए का वैल्यू 500 समेशन डी का वैल्यू और डिवाइडेड बाय एन, दिस इज आल्सो कमिंग टू द सेम 520।
one more method, or you can say this method is also used for simplify the calculation. It involves one additional number, that is h. First one involving only one number, that was a. Here it is involving two numbers, one is a as well as another is h. Okay, so here what we are doing, we are simply further reducing the numbers or simplifying the numbers into smaller ones. पहले वाले केस में डेविएशन लिया था तो कुछ नंबर्स छोटे हुए थे, इसमें और छोटे नंबर्स करेंगे तो उसके लिए हमने एक एडिशनल h से डिवाइड किया है। तो आप देखेंगे जो u लिखा हुआ है x माइनस ए डिवाइडेड बाय h, तो x माइनस ए तो बेसिकली d है जो पिछले मेथड में हम लोगों ने कैलकुलेट किया है ना। अब उसको हम एक h नंबर से और डिवाइड करते हैं। तो अब इसमें ऐसा हो सकता है कि जो h आप चूज करेंगे उससे ऐसा भी हो सकता है कि ये नंबर्स डेसिमल में चले जाएं। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी ये रखना है कि वो जो h हम चूज कर रहे हैं वो ऐसा चूज करें ताकि जो डिवीजन के बाद के नंबर्स आए u वो फ्रैक्शन में ना जाए। ठीक है, जा भी सकते हैं बट ट्राई ये करना है कि वो फ्रैक्शन में ना जाए। जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे अभी जो हम लोगों ने यूज किया है एग्जाम्पल, तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो लिखा है x माइनस ए बाई एच है ना, इसको स्टैटिस्टिक्स की भाषा में, स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में हम लोग चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल बोलते हैं। जो पहले ए सब्ट्रैक्ट किया था x में से, जिसको हमने डेविएशन बोला था, ठीक है, उसका टेक्निकली स्टैटिस्टिक्स में हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, और ये जो h से हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं इसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। तो इस मेथड में वो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों इन्वॉल्व। ठीक है, क्यों, आगे हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे जो मेजर्स हैं या स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट्स हैं हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर आपको ये मालूम है एज ए प्रॉपर्टी कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन है, ठीक है, तो उसमें कुछ आप ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही चेंज ऑफ स्केल के लिए, तो ये हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। अभी आगे चलते हैं, इसमें देखें एक्स बार कैसे निकाला हुआ है, ए प्लस एच टाइम्स ऑफ यू बार। तो इसमें जो हमने यू बनाया था एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, उसका मीन निकाला है दैट इज यू बार, और एक्चुअल जो मीन हमको निकालना था एक्स वेरिएबल का वो कैसे आया, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच टाइम्स ऑफ मीन ऑफ यू। तो ये इस फॉर्मूले से, अब आप देख रहे हैं इसमें u जो आए हैं वो और ज्यादा सिंपल हो गए, और ज्यादा छोटे नंबर्स मिल गए, है ना। जिसको अगर थोड़ा सा मैथ्स अच्छा होगा तो बिना कैलकुलेटर के भी आप यूज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए ये मेथड हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है। आंसर देख रहे हैं आप, तीनों मेथड में वही आ रहा है 520। तो ये तीन मेथड है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के। अब वही चीज जो एग्जाम्पल अभी हमने लिया उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दिया, अगर फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में होगा तो सिंपली आप देख रहे हैं जो फॉर्मूले हैं वो अकॉर्डिंगली उसके साथ क्या होगा, x के साथ मल्टीप्लाई f हो जाता है, वैसे d के साथ मल्टीप्लाई f हो जाएगा और u के साथ मल्टीप्लाई f हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और आती है, जनरली आप पाएंगे कि जो डेटा हमको मिलता है या जिससे हम लोग कुछ कैलकुलेशन पर्टिकुलरली करते हैं, वो या तो हमको सिंपली एक डेटा सेट दिया होगा, सिंपली कुछ नंबर्स, ठीक है, या डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में दिया होगा। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन मींस वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ एक्स कॉलम एंड अनदर कॉलम विल हैविंग द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो दूसरा ये केस मिल सकता है, या तीसरा एक आपको आइडिया होगा या नहीं है तो हम बात करते हैं, वो है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मींस द डेटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस, not in the individual observation. Means suppose it is given 0 to 10, then 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 like that. ठीक है, तो इसमें क्या है, हमको एक इंटरवल दिया है कि how many numbers lying between this 0 to 10, its count is given in the frequency column.
ठीक है। तो मोस्टली ये 3 टाइप के ही डेटा सेट्स आपको मिलेंगे जिन पे आपको कुछ कैलकुलेट या कैलकुलेशन करना है। तो किसी भी मेजर को कैलकुलेट करने के लिए चाहे मीन निकालें चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, हमको इन तीनों के फॉर्मूले पता होना चाहिए कि ये तीनों पे काम कैसे करता है। ठीक है। तो इसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वो जो ग्रुप है उसका मीन वैल्यू कैलकुलेट करके एज एक्स ट्रीट करते हैं या यूज करते हैं, और उसके बाद फिर हम यही फॉर्मूले उस पर भी लगाते हैं। ठीक है। दिस इज सिंपल कैलकुलेशन फॉर अर्थमेटिक मीन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं, ये मोस्ट वाइडली यूज होता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इस पर डिटेल में जा रहे हैं, थोड़ा सा इन पर टाइम ले रहे हैं, बाकी अदर्स पे उतना टाइम हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है। तो प्रॉपर्टियों की हम बात करते हैं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि algebraic sum of the deviations of all the varied values from their arithmetic mean is 0। मतलब जो d हम लोगों ने निकाला था x माइनस a, d की वैल्यूज जो निकाली थी उसका अगर हम समेशन करें तो क्या होगा, algebraic sum of the deviations of all the varied values from their arithmetic mean। लेकिन वो डेविएशन अर्थमेटिक मीन से लेना होगा। इससे पहले हमने क्या किया था, x माइनस ए का वैल्यू 500 था, तो वो 500 वाले की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अगर x माइनस 520 जो मीन वैल्यू आया था उस क्वेश्चन में, ठीक है, तो x माइनस 520 हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ करें और फिर जब सम करेंगे तो वो डेविएशन का सम जो होगा दैट विल बी 0। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी है, इफ एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएटी इज इंक्रीज्ड बाय सम कांस्टेंट a, then arithmetic mean is also increased by a। It means हम क्या कर रहे हैं, सारे नंबर्स में किसी नंबर को ऐड कर दे रहे हैं, जो ओरिजिनली हमारे पास डेटा दिया हुआ था उस सभी में सपोज करते हैं 100 हमने ऐड कर दिया सारे नंबर्स में, जो क्वेश्चन में दिए नंबर्स थे 9 नंबर्स थे, उन सभी में 100 सब में ऐड कर दिया, तो एक नया डेटा सेट मिल गया। तो अब जो नया डेटा सेट का मीन होगा वो क्या होगा, पुराने डेटा सेट में जो मीन था 520 उसमें 100 ऐड हो जाएगा, तो आपको फिर से वो सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है अगर आप सेकंड प्रॉपर्टी जानते हैं तो दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी को चेंज ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। और ये जो अर्थमेटिक मीन है ये चेंज ऑफ ओरिजिन पे क्या है, डिपेंडेंट है, कि ओरिजिन चेंज होगा तो मीन वैल्यू भी चेंज होगा। कुछ स्टैटिकल कांस्टेंट या वैल्यूज हम आगे देखेंगे कि जो इंडिपेंडेंट होती हैं, उसमें आप कुछ ऐड भी करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मीन के केस में ये है कि इस पे फर्क पड़ता है। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी इज अर्थमेटिक मीन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। थर्ड प्रॉपर्टी बेसिकली वो स्केल को भी इन्वॉल्व कर ले रही है, कि अगर जो नंबर्स दिए थे उसमें आप सपोज 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी मीन को चेंज होना है। ठीक है, जैसे सम किया या ऐड और डिवाइड की, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तब भी चेंज होना है, मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन पे डिपेंडेंट है। ऐसे मल्टीप्लाई या डिवाइड भी करेंगे तब भी मीन चेंज होना है, दैट इज इट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द स्केल, चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी में दोनों आ गए, ओरिजिन एंड स्केल। फोर्थ वन, the sum of the squares of the deviations of all the values taken about where arithmetic mean is minimum। अब ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ये इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो आपने डेविएशन लिए मीन के हो, मतलब सभी नंबर्स में से मीन को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको जो डेविएशंस की वैल्यू मिली, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि उसको ऐड करेंगे तो सम 0 आए, लेकिन फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर उनका स्क्वायर करके फिर सम करें तो 0 तो नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर में नंबर्स सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, है ना, तो सम 0 नहीं आएगा, लेकिन वो लीस्ट होगा, मिनिमम होगा। किससे मिनिमम होगा, वो जो डेविएशन अगर हम मीन की जगह किसी और नंबर से निकालें, कोई भी नंबर ले लें उसका मीन के अलावा, तो एक डेविएशंस मिलेंगे आपको, उनके स्क्वायर्स करेंगे फिर उसका सम करेंगे तो एक वैल्यू वहां से मिलेगी, और एक डेविएशंस अर्थमेटिक मीन से लेंगे तो उनके स्क्वायर्स करेंगे सम करेंगे तो एक वैल्यू यहां से मिलेगी, तो दिस विल बी लीस्ट। सो वट एवर नंबर अदर देन मीन यू चूजन फॉर द डेविएशंस और स्क्वायर करके सम करेंगे तो वो वैल्यू लार्जर आएगी, मीन वाली छोटी आएगी। ये दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी।
अब इसमें कई सारी चीजें हैं जिनको आप याद रख सकते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। कई बार इसको पढ़ते तो हैं हम लोग, बट वो चीज कंफ्यूजन हमेशा रहती है, क्रिएट करती है ना। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि सैंपल मीन या अर्थमेटिक मीन में ऐसी क्या चीज है जो इसको बाकी चीजों से अलग बनाती है या इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, ऐसा क्या है इसके अंदर। तो ये कुछ इसके मेरिट्स हैं जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या है, अर्थमेटिक एवरेज इज रिजिडली डिफाइंड। रिजिडली डिफाइंड मीन्स वो एक फिक्स वैल्यू को जाता है ना, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है या उसकी वैल्यू एक्यूरेट निकलती है, ये आप कह सकते हैं। इट इज इजिली कैलकुलेटेड फ्रॉम द गिवन डाटा, इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। ये सैम्पलिंग का टर्म जो है ना, ये थोड़ा सा आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम सैंपल लेते हैं और 4 लोगों ने सैंपल लिया तो 4 सैंपल आएंगे, फिर चारों अलग अलग मीन निकालेंगे, है ना। तो ये फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग का मतलब वहां से है कि डिफरेंट डिफरेंट लोग अगर सैंपल लेते हैं तो फिर लोगों की जो कैलकुलेटेड डिफरेंट डिफरेंट मीन्स है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। ये किससे है। और लास्ट वन इज इट lends itself to algebraic treatment. It means it is ready for the further calculations based on this particular mean. ठीक है, मतलब जैसे 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप का मीन आपको पता है, दूसरे ग्रुप का मीन पता है, तो ओवरऑल ग्रुप का मीन आप निकाल सकते। इस तरह के एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए ये सुटेबल होता है, ठीक है। दिस इज फोर्थ वन। अब वैसे तो हर एक का कुछ ना कुछ डिमेरिट होता ही है, तो इसका भी कुछ डिमेरिट है, ठीक है। तो उसमें आप दे सकते हैं कि ये सिंपली मतलब कुछ चीजें हैं, जैसे अभी हम लोग आगे देखेंगे मीडियन मोड वगैरह को, जिसको आप ग्राफिकली भी ड्रॉ करके और एक लगभग में वैल्यू निकाल सकते हैं, वो इसके साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या है, कुछ क्वालिटेटिव डेटा के लिए हम लोग जाते हैं स्टडी में, तो वहां पे ये सुटेबल नहीं होता है ना, जैसे जिसमें हमको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी लेना है जो क्वालिटेटिव नेचर की है ना, तो वहां पे ये बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स का आइडिया हो गया है तो आप समझ सकते हैं कि उसका यूज जनरली कहाँ होने वाला है। जैसे अभी हमने कहा कि मेरिट्स में ये है कि ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छा है, सुटेबल है, तो ओबियसली जो इस तरह की स्टडी होगी उसके लिए ये हमारा अप्रोप्रिएट होगा। और डीमेरिट ये था कि हमारा ये क्वालिटेटिव नेचर के लिए सुटेबल नहीं है, तो ये उसके लिए उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। तो यूजेज में आप देख सकते हैं, इट इज प्रीफर्ड व्हेन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल अभी हम आगे डिटेल में बात करेंगे, अभी सिर्फ सिमेट्रिकल वर्ड को समझने के लिए ये है कि जो हमारे डेटा पॉइंट्स हैं या डेटा सीरीज जो हमारे पास अवेलेबल है, उसमें जो सेंट्रल वैल्यू की हम बात करें, जैसे अभी अर्थमेटिक मीन की बात किए, तो उसके एक साइड में बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं आने चाहिए। मतलब ये है कि लगभग, ये सिमेट्री का अभी कॉन्सेप्ट हम लोग आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ सिमेट्री का मतलब कि जो हमारा मीन आया है उसी के राइट में 5-6 वैल्यू है, तो लेफ्ट में भी लगभग 5-6 वैल्यू होना चाहिए। रफली अभी हम ये बात करेंगे, आगे हम लोग डिटेल में इस पे चलेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट चलते हैं मीडियन के बारे में, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस अर्थमेटिक मीन, दिस मीडियन is next widely used measure of central tendency. सेंट्रल टेंडेंसी में मीन के बाद अगर जो सबसे ज्यादा यूज होता है तो वो ये आप कह सकते हैं मीडियन। कई बार मीडियन को इन प्लेस ऑफ मीन भी यूज करते हैं। सो when the observations are arranged in ascending or descending order of magnitude, then the middle value is called the median of these observations. So median जो है ये सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है, बट ये फोकस करता है उसकी लोकेशन पे, है ना। लोकेशन से मतलब ये है कि इसमें आपको क्या देखना है कि जब हम डेटा पॉइंट जो भी हमारे पास हैं उनको एक ऑर्डरिंग में अरेंज करें,
जनरली असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं हम लोग, ठीक है, बट लिखने को आप डिसेंडिंग में ही कर सकते हैं, बट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसा सेंट्रल वैल्यू मिले जिसके पहले ऑलमोस्ट 50% ऑब्जर्वेशन हो और जिसके बाद ऑलमोस्ट 50% ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इस तरह की एक हम लोग वैल्यू चाहते हैं और वो वैल्यू एज अ मीडियन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। So median is that value of the variate for which there are equal frequencies of greater and smaller values. That is the total frequency above the median is equal to the total frequency below the median. So this is basically a positional average. ये position पे focus कर। अब इसके कंप्यूटेशन की बात करें, जैसे मीन के कंप्यूटेशन की हम लोगों ने बात की थी, उसी लाइन पे हम लोग इसको भी करते हैं, ठीक है। तो सिंपल नंबर्स दिए हैं, 4 नंबर 5 नंबर दिए हैं, तो उसमें क्या करना है आपको, अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, और जो मिडिल नंबर पड़ेगा वो हम लोग उसका मीडियन ले लेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास ऑड नंबर है, जैसे 5 नंबर दिए हैं, तो 2 आगे की तरफ होगा, 2 पीछे की तरफ होगा, बीच में जो नंबर आएगा आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर वो वैल्यू उसका मीडियन हो जाएगा, ठीक है। अगर इवन नंबर है, 10 नंबर्स दिए हैं तो क्या होगा, फिर तो बीच में कोई नंबर वैसा हो नहीं पाएंगे कि जिसके इस तरफ भी उतने नंबर हो, इस तरफ भी उतने नंबर हो, तो जनरली बीच में जो 2 नंबर पड़ते हैं उनका हम लोग एवरेज ले लेते हैं। एवरेज मतलब जो अर्थमेटिक मीन निकालते हैं वो वैल्यू लेकर के हम लोग, तो यहाँ पे ये चीज आपको फॉर्मूले में दिख रहा होगा कि कैसे हमको कौन सा टर्म मीडियन बोलना है आफ्टर अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले हैं, एक ऑड के लिए है, एक इवन के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि अगर डिस्क्रीट डेटा के फॉर्म में हमको डेटा दिया, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है लेकिन डिस्क्रीट में है। डिस्क्रीट मतलब एक्स की वैल्यूज जैसे 100 है, एक्स की वैल्यू 200 है, एक्स की वैल्यू 250 है, लाइक है, तो ये वैल्यूज हमारी डिस्क्रीट वैल्यूज है। हमने कहा था अभी कि 3 तरीके से आपको डेटा मिल सकता है, एक तो सिंपल एक इंडिविजुअल सीरीज दी हो जिसमें फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, दूसरी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में मिल सकता है जिसमें एक्स की वैल्यू एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसी है, तीसरा आपको ग्रुप्ड में आपको दिया हुआ है एक्स की वैल्यूज या रेंजेस में, और नेक्स्ट कॉलम दिया है फ्रीक्वेंसी। ये 3 होते हैं। तो कोई भी कैलकुलेशन आपको करना है, चाहे मीन का करना है या मीडियन का करना है या मोड का करना है, तो इन्हीं में से किसी में आपको जाना होगा। तो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो ये है कि अगर डिस्क्रीट में दिया हुआ है तो फिर आपका एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे 2 कॉलम हमारे पास गिवन है, एक्स का कॉलम है और एफ का कॉलम है, तो थर्ड कॉलम दैट विल कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए आपको लिखते जाना है। फर्स्ट वैल्यू की जो फ्रीक्वेंसी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, वही वैल्यू उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, लेकिन सेकंड जो वैल्यू ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस सेकंड फ्रीक्वेंसी। Similarly, third cumulative frequency value will be the total of the first frequency plus second frequency plus third frequency. इस तरीके से आप एक कॉलम एडिशनल बनाते हैं, that is called as cumulative frequency, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी cumulative टोटल आएगा, लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज आएगा, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जो लास्ट वैल्यू आएगी वो सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज होगा, एंड दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, ठीक है। जनरली हम लोग उसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और उसकी जो वैल्यू है उसका जनरली हम लोग n/2 कैलकुलेट करते हैं, और फिर वो n/2 की जो वैल्यू है, कुछ बुक्स में n+1/2 भी कैलकुलेट करते हैं, बट n/2 आप लोग याद रखिए, वो इसलिए है कि आगे हम लोग जो फॉर्मूला कैलकुलेट करने वाले उसमें भी n/2 यूज करना है, तो आप n/2 यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो n/2 कैपिटल n/2 की हम बात कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको देखेंगे कि वो किस रो में जा रहा है, ठीक है। अभी कैलकुलेट करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी उसमें, और वहां से आप उसका मीडियन वैल्यू डिसाइड करते हैं। अब देखो ग्रुप फ्रीक्वेंसी में जनरली ये कैलकुलेट करने को आता है कि आपको
क्लासेस दी हुई है एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तब आपको मीडियन कैसे निकालना, ठीक है। तो इसमें एक मीडियन क्लास हमको डिसाइड करना होता है पहले, उसके बाद फॉर्मूला काम करेगा। फॉर्मूला भी हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे। तो मीडियन क्लास कैसे डिसाइड होगा उसकी हम बात करें तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाला है थर्ड कॉलम, उस कॉलम में आपको कैपिटल एन मिला, कैपिटल एन बाई 2 की वैल्यू आप निकालेंगे। तो वो जिस रो के नियरर, नियरर का मतलब जैसे मान लीजिए हमने एन का, कैपिटल एन की वैल्यू 400 आया, अभी देखते हैं आगे आपको, ये फॉर्मूला पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक एग्जांपल से, तो सारी चीजें समझ में आएंगी। ये मीडियन कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। इसमें जो चीजें लिखी हैं वो देखें फॉर्मूले में, फर्स्ट लिखा है स्मॉल एल, ये बेसिकली लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट करता है मीडियन क्लास का। मीडियन क्लास अभी कैसे निकालेंगे वो हम एग्जांपल में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ग्रुप में जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया है, मीडियन कैलकुलेट करना है, तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है पहले, और उसके साथ फिर आपको कैपिटल एन बाई 2 की वैल्यू निकालनी है, उससे मीडियन क्लास डिसाइड होगा। और मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट वैल्यू है, क्लास मतलब 10 से 20, जैसे 20 से 30, तो जो पहला वैल्यू है वो उसका क्लास का लोअर वैल्यू है। जैसे क्लास इंटरवल है 10 to 20, तो स्मॉल एल का वैल्यू 10 हुआ, पहला वाला ना, ठीक है। तो वो एल है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। इसी तरीके से कैपिटल एन बाई 2 क्या है, अभी आपने देखा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आएगा उसका डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कैपिटल एन बाई 2 की वैल्यू मिलेगी। कैपिटल एफ, कैपिटल एफ क्या है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो जो मीडियन क्लास डिसाइड होगा उससे पहले वाली क्लास के सामने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में होगा, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ठीक है। कैपिटल एन इज टोटल फ्रीक्वेंसी एंड आई इज डिनोटिंग द विड्थ ऑफ द क्लासेस। जैसे 10 से 20 है तो क्लास की विड्थ हो गई आपकी 10, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये एग्जांपल में देखेंगे सारी चीजें कैसे कैलकुलेट हो रही हैं। अब देखें इसमें क्या है, कैलकुलेट मीडियन लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल फॉर द फॉलोइंग डेटा। अभी लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल को भूल जाएगी, हम लोग उस पर आगे बात करेंगे, अभी बस हमको मीडियन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मीडियन में क्या करेंगे, देखो इसमें क्लासेस दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फर्स्ट 2 रो जो है वो हमको गिवन है, थर्ड वाला हम लोगों ने कैलकुलेट करना होगा एज ए कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसमें हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी ऑब्जर्व कर ली है कि क्या मिलेगा। अब लास्ट कैपिटल एन का वैल्यू आया 39, है ना। तो हमने क्या किया, 39/2 निकाला, नीचे देखो लिखा हुआ है 39/2 का वैल्यू क्या आएगा, 19.5, है ना। तो उस 19.5 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखते हैं, यहाँ पे रो में दिया हुआ है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली जो रो है उसमें देखते हैं 19.5 कहाँ पड़ेगा, आफ्टर 18, 18 के बाद पड़ेगा, 30 से पहले पड़ेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वो 30 से पहले पड़ेगा, अप टू 30 वाला वो 8 से 12 वाला जो क्लास इंटरवल लिखा हुआ है वहां उस वाले में अप टू 80 फ्रीक्वेंसीज उसमें लाई करती है ना। तो यहाँ पे हम लोग वो जो 8 से 12 है उस क्लास इंटरवल को या उस क्लास को डिक्लेयर कर देंगे दिस इज अवर मीडियन क्लास फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ठीक है। यही आपको करना है, कोई दूसरा भी डेटा होगा तो उसमें भी आपको यही करना है। यही फॉर्मूला था, इसमें सारी चीजें हम लोगों ने रख दी हैं। देखो लोअर लिमिट 8 है, n/2 का वैल्यू 39/2। अब देखो कैपिटल एफ क्या चीज है, ये क्या है, कैपिटल एफ वाज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। देखो इसमें तो मीडियन क्लास है 8 to 12, उससे पहले का जस्ट पहले का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 18। तो इस फॉर्मूले हम लोगों ने 18 का यूज किया। नीचे एफ जो है स्मॉल एफ, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये सिंपल फ्रीक्वेंसी है ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के करस्पॉन्डिंग में जो फ्रीक्वेंसी ओरिजिनली हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था दैट इज दिस 12, and class interval of the median class is 4, so it is calculated as 8.5, simple। अब जो दो हमने क्वार्टाइल्स की बात की थी वो जस्ट हमने इसमें इसलिए आपको बताए हैं
कि मीडियन जो है, वैसे तो हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी में, बट इसी से मिलते जुलते इसके दो क्वार्टाइल्स हम लोग साथ में पढ़ते हैं। क्वार्टाइल्स है क्या चीज? क्वार्टाइल बेसिकली पोजिशनल वैल्यूज है। पोजिशनल वैल्यूज से मतलब ये है कि अगर डेटा को आप एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, फिर आप चाहते हैं कि एक ऐसी पोजीशन हमको आइडेंटिफाई करना है जिससे लेस देन 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन डेटा मिले और अबव द उस वैल्यू के 50% मिले, तो दैट इज मीडियन। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा मीडियन जो है, इसी को हम लोग सेकेंड क्वार्टाइल भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 50% इस तरफ और 50% उस तरफ कर देता है। इसी लाइनअप पे दो क्वार्टाइल्स हम लोग इसके अलावा और कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल दैट इज कॉल्ड एज Q1, थर्ड क्वार्टाइल दैट इज कॉल्ड एज Q3, और मीडियन तो Q2 है ना। तो ये जो क्वार्टाइल्स है Q1, Q2, Q3, ये पूरे डेटा को 25% इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम Q1 कैलकुलेट करेंगे तो उसका मतलब ये होगा Q1 इज दैट वैल्यू विच डिवाइड्स द डेटा इनटू लोअर में 25% रहेगा, अपर में 75% रहेगा। मीडियन क्या करता है? 50% इस तरफ, 50% उस तरफ, तो वो सेकंड क्वार्टाइल है। Q2 इज मीडियन बेसिकली। Q1 क्या है? Q1 भी एक पोजिशनल वैल्यू है या पोजिशनल एवरेज आप कह सकते हैं। वो क्या करता है? एक ऐसी लोकेशन है या पोजीशन है जिससे पहले जो है वो 25% ऑफ द डेटा यू विल गेट, और उसके अबव में यू विल गेट द 75% ऑफ द डेटा। सो दैट इज Q1। सिमिलरली Q3 होता है। Q3 क्या करता है? उससे नीचे 75% मिलते हैं और उससे ऊपर 25%। ठीक है, तो बेसिकली ये जो क्वार्टाइल्स हैं Q1, Q2, Q3, ये पूरे डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए ये Q1 हमने फॉर्मूला वैसे ही है, केवल n/4 हो गया है Q1 के केस में, मीडियन के केस में n/2 था, और Q3 के केस में ये हो जाएगा 3n/4। फॉर्मूला आप देखें अगर Q1 का, तो केवल n/2 जो मीडियन में था उसकी जगह n/4 हो गया Q1 के फॉर्मूले में। ऐसे Q3 के फॉर्मूले देखें तो जो मीडियन के फॉर्मूला था उसमें n/2 था, Q3 में वो हो गया 3n/4। ठीक है, फॉर्मूला ऑलमोस्ट उसी तरीके का है, केवल आपको जो मीडियन क्लास निकल के आता था यहाँ पे क्वार्टाइल क्लास बदल जाएगा। Q1 का क्वार्टाइल क्लास अलग होगा, Q3 का क्वार्टाइल क्लास अलग होगा। क्यों? क्योंकि वो n/4 की वैल्यू से डिसाइड होगा और 3n/4 की वैल्यू से डिसाइड। ठीक है, अभी इसके बाद जाओ जो सेशन होगा उसमें आप लोग देखेंगे कि वो जब हम लोग कैलकुलेशन उसमें डेटा में हैंड्स ऑन जब आप लोग करेंगे तो उसमें ये कैलकुलेट करके तीनों आते हैं क्वार्टाइल्स में। ठीक है, अब इसका मीडियन का मेरिट्स डीमेरिट्स की बात करें तो मेरिट में ये है कि इट इज वेरी रीडली कैलकुलेटेड, यू कैन एग्जैक्टली बी लोकेटेड। मतलब ये लोकेशन को इम्पोर्टेंस जैसा हमने शुरू में कहा था अभी भी है। ठीक है, और एक साथ ये भी है कि ये फ्लक्चुएशन से कम अफेक्टेड होता है, या ये कहें कि इसमें कुछ आप वैल्यूज को ऐड करते हैं या कुछ डिलीट कर देते हैं तो भी बहुत ज्यादा मीडियन पे चेंजेस नहीं आते हैं। चेंजेस तो आते हैं बट बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये उस तरह की सिचुएशंस के लिए ये एडवांटेजेस। ठीक है, इसके साथ क्वालिटेटिव डेटा के लिए एक अच्छा मेजर है, तो क्वालिटेटिव टाइप के डेटा में देखेंगे तो इसको प्रेफरेंस मिलती है। और ये लास्टली जो देख रहे हैं कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने लिखा है कि फर्स्ट जो क्लास इंटरवल में है वो ऐसे लिखा है कि लेस देन 25 की सारी वैल्यू फर्स्ट रो में आ गई, फिर 25 से 30 की वैल्यू सेकंड रो में दी है, फिर 30 से 35 की ऐसे देते देते लास्ट में चला गया, फिर उसने कहा ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन 95। तो ये इसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्लासेस, है ना। तो इस टाइप के केस में आप मीन नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मीडियन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए मीडियन अच्छा रहता है। अब इसकी डिमेरिट्स की बात करें तो उसी लाइन पे देखते हैं कि ये एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए सुटेबल नहीं। जैसे मीन जो था कि दो ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप का हमको मीन पता है तो हम लोग ओवरऑल मीन निकाल सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। एक ग्रुप का मीडियन आपको मालूम है, दूसरा ग्रुप का मीडियन मालूम है, आप चाहें कि होल का मीडियन हम उन्हीं दो मीडियन के यूज करके निकाल दें तो इसमें ये पॉसिबल नहीं।
तो दिस इज नॉट सुटेबल फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। ठीक है, इसी तरीके से इट मे नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय द एक्चुअल डेटा, मतलब जो डेटा वैल्यूज हैं उसके अलावा कोई वैल्यू मिलती है इसमें। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को देख सकते हैं। यूज में वही सारी चीजें हैं कि ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका यूज होगा, वहां पर मीन नहीं हो सकता है ना। क्वालिटेटिव नेचर का डेटा है तो इसका यूज होगा, वहां पे अर्थमेटिक मीन नहीं होगा। इस तरह की चीजें आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मोड। जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था कि ये अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड स्टैटिस्टिक्स में ये ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, दो और हैं जो थोड़े कम यूज होते हैं, बट इसीलिए हम लोग इस पर टाइम भी दे रहे हैं, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं मोड। मोड से मतलब क्या है, जनरली इसका मतलब ये है कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग आइटम। ठीक है, मतलब जो बार बार, या ये कहें कि ज्यादा टाइम आपको डेटा सीरीज में मिल रहा है, वो उसका मोड है रफली। ठीक है, जैसे हम लोग मोस्टली 8 नंबर के जूते पहनते हैं, है ना। मोस्टली, मोस्टली इसलिए बोल रहे हैं कि 7 नंबर के भी लोग पहनते हैं, 9 नंबर के भी पहनते हैं। ठीक है, तो मोस्ट अकरिंग आइटम है। ऐसे मीडियम साइज की हम लोग शर्ट पहनते हैं मोस्टली, है ना। तो ये उस चीज से रिलेटेड है। मोड का मतलब है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग आइटम, उसको हम लोग इसमें मोड में यूज करते हैं। तो अब हम लोग इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वही 3 केसेस हैं। सिंपल कुछ नंबर्स दिए हैं, उसमें मोड कैलकुलेट करना है, तो उसमें आप काउंट करके भी देख सकते हैं कौन सा नंबर ज्यादा टाइम्स आ रहा है। ठीक है, फिर होगा कि डिस्क्रीट डेटा, एक्स का वैल्यू दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दिया होगा, तो उसमें आपको कैलकुलेट करना होगा, वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, है ना। अब इस मोड के केस में जनरली होता तो ये है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसका होगा वही मोड हो जाता है। ठीक है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ केसेस में आपको बी प्रोसेस, उसमें आपको ध्यान रखना होता है। कहाँ ध्यान रखना होगा, जैसे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ, एक्स की वैल्यूज दी हुई है और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आपको दी हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कभी कभी होता है कि आपको किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के सामने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिख रही है कि ये इसकी हाईएस्ट वैल्यू अमंग द गिवन फ्रीक्वेंसी, तो आप कहेंगे कि उसके सामने वाला जो वेरिएबल है दैट इज मोड, है ना। बट कई बार ऐसा नहीं होता है। उसका कारण ये है कि जब जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसके नियर बाई वैल्यूज की उसी से मिलती जुलती कम है, स्मॉलर है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में और सेकंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में या थर्ड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तब उस केस में हम लोगों को कुछ एक थोड़ा सा लेंथी मेथड यूज करना पड़ता है, उसको बोलते हैं मेथड ऑफ ग्रुपिंग। ठीक है, मेथड ऑफ ग्रुपिंग का यूज करके फिर हम लोग एग्जैक्ट देखते हैं कि जो हमको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का वेरिएबल मोड लग रहा है क्या वास्तव में वही है, या जो सेकंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला है वो भी मोड हो सकता है। ठीक है, तो मोड के हम इस मेथड ऑफ ग्रुपिंग में डिटेल में नहीं चल रहे हैं। वो एक मेथड है जिसमें हम लोग एक बार क्या करते हैं, 2 2 का सम करते हैं, फिर 3 3 का सम करते हैं, फिर इस तरीके से 5 6 कॉलम एक्स्ट्रा बना के फिर फाइनल कंक्लूड करते हैं। तो अभी हम लोग इसमें नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है। जैसे मीडियन में हम लोगों ने देखा था एक फॉर्मूला है, उसी तरीके से मोड के लिए हम लोगों को मॉडल क्लास डिसाइड करना होता है। मॉडल क्लास कैसे डिसाइड होगी, मॉडल क्लास डिसाइड करने के लिए हमको ये देखना होगा कि जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसके कंपेरेबल में उसके आसपास फ्रीक्वेंसी नहीं होना चाहिए, तो हम लोग अस्यूम कर लेते हैं कि यही हमारी मॉडल क्लास हो गई। लेकिन अगर उसके नियर बाई में कंपेरेबल फ्रीक्वेंसीज भी हैं तो फिर मेथड ऑफ ग्रुपिंग से जाकर ही आप मॉडल क्लास डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मॉडल क्लास डिसाइड आपने कर लिया है देन यू कैन गो फॉर द फॉर्मूला। जो फॉर्मूला हम लोग देखते हैं कि
ये मोस्टली हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं मोड कैलकुलेशन के। तो इसमें उसी तरीके से जैसे मीडियन वाले फॉर्मूले में हम डिस्कस किया था, क्या चीजें हैं देखो, एल जो है दैट इज लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, एल एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, एफ माइनस वन जो लिखा हुआ है दिस इज द फ्रीक्वेंसी बेसिकली, माइनस वन वो मतलब ऐसा नहीं है, जस्ट इट इज टू इंडिकेट, है ना, इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से पहले जो क्लास पड़ेगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज एफ माइनस वन, जो वो इंडिकेट होगा। ऐसे एफ वन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, उससे अगली वाली जो मॉडल क्लास की नेक्स्ट क्लास होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी दैट इज योर एफ, ठीक है। आई इज द क्लास इंटरवल। इस फॉर्मूले को हम लोग मोस्टली मोड कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, कई बार क्या होता है आप इसमें देख रहे हैं डिनोमिनेटर में क्या है कि दो चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो कई बार ये वैल्यू हमको 0 दे देता है डिनोमिनेटर, है ना। तो जब ये फॉर्मूला काम नहीं करता है या इसको हम लोग नहीं यूज कर पाते हैं तो हम लोग दूसरा फॉर्मूला भी एक है, इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला टर्म्स ऑलमोस्ट वही है, बस इसका लिखने का तरीका बदल गया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज करते हैं। प्रेफरेंस पहले वाले फॉर्मूले को रहता है, अगर वो किसी कारण से नहीं यूज हो पा रहा है, एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर हम लोग इस फॉर्मूले में आते हैं, ठीक है। अब इसमें एक रिलेशन आप देख रहे होंगे, ये मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मोड मीडियन, ठीक है। ये रिलेशन आप देख रहे हैं मॉडरेटली असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए ये काम करता है। अभी हम सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल आगे बात करेंगे डिटेल में। तो ये एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज करते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ मीन माइनस मीडियन। ये आप लोग करके देख लीजिएगा, ये जस्ट आपके लिए है, ठीक है, इसका सोल्यूशन नहीं है। तो ये आप अभी हैंड्स ऑन होगा तो उसमें कुछ और बड़े से डेटा सेट आपको मिलेंगे, तो उसमें सारा आप सीख जाएंगे कैसे करना है। ये जस्ट एक प्रॉब्लम है जिसको आप मैनुअली करके चेक कर सकते हैं कि फॉर्मूला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके, इसी तरीके से इसके अब हम लोग मेरिट्स और डीमेरिट्स पे आते हैं। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स पे बात करेंगे तो सिंपली वही है कि जिसका काम जहाँ पे है वो उस जगह के लिए सुइटेबल होता है ना। तो वैसे ही इस मोड का अपना एक सुइटेबिलिटी एरिया है कि जहाँ पे यही यूज होगा या इसी का काम है, मीन या मीडियन वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसमें मेरिट्स में आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ से भी कैलकुलेट हो जाता है, और मोस्टली जो इंडस्ट्रीज में है कोई लॉट साइज है या हम लोग को देखना है कि मोस्टली जिस चीज का रिक्वायरमेंट है वो हमारे ज्यादा चीजें बनानी है हमको ताकि हम पब्लिक को बेटर सर्व कर सकें, तो इस तरह की चीजें आपके लिए ये मोड हम लोग प्रीफर्ड करते हैं। डीमेरिट में देखते हैं इट इज इल डिफाइंड, एक क्लियरली डिफाइंड मोड डज नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट, मतलब कई बार एक फार्मूला काम नहीं करता तो दूसरे फार्मूले से निकालते हैं, बट वो चीज नहीं मिलती है, उससे स्लाइटली डिफरेंट मिलता है ना। इसी तरीके से इसमें कोई भी मेजर हो, चाहे मीन की बात करें या मीडियन की बात करें या मोड की बात करें, या अभी आगे हम लोग कुछ मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन भी पढ़ेंगे, जिसमें सारे ऑब्जर्वेशंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है वो जनरली अच्छा मेजर नहीं होता है ना। तो इसको भी हम लोग डीमेरिट में देखते हैं। यूज में देखते हैं इट इज रिकमेंडेड व्हेन अ क्विक एंड अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज डिजायर्ड, तब हम लोग इसको यूज करते हैं। व्हेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड, स्क्यूड अभी हमने जैसे रफली कहा था कि वो एक साइड ज्यादा ऑब्जर्वेशन आते हैं और एक साइड कम ऑब्जर्वेशन तक रहते हैं, तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को रफली हम लोग कहते हैं स्क्यूड, ठीक है। अब ये दो थोड़े से मैथमेटिकल उसमें रहेंगे, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब कंप्यूटर्स में कैलकुलेट होके आता है, बस आपको केवल कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला समझ लेना है और उसकी रिक्वायरमेंट कि कब उसको लगाना चाहिए, कब वो यूज होता है, ठीक है। बस उस पर आपको फोकस करना है, फॉर्मूले की डिफिकल्टी में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये ज्योमेट्रिक मीन है,
ज्योमेट्रिक मीन में जनरली करते क्या है हम लोग, जैसे 3 नंबर्स हैं, सिंपल 3 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, मतलब तीनों को प्रोडक्ट करो, ठीक है, और फिर उसका क्यूब रूट लेना है। और सिंपल करें 2 नंबर है तो 2 नंबर को प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो और उसका स्क्वायर रूट ले लो, है ना। तो वो हमारा सिंपल जो ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट है हम लोग वो यूज करते हैं। इसी तरीके से जितने नंबर होंगे, जैसे n नंबर लिए तो फॉर्मूला वही है कि आपको मल्टीप्लाई करना है या प्रोडक्ट लेना है नंबर्स का और फिर nth रूट निकालना है ना। ये जो फॉर्मूला लिखा है ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी के साथ दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी सबकी हम 1 ले लेंगे तो वही फॉर्मूला है जो हम अभी बात कर रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी साथ में दी हुई है एक्स वैल्यूज के साथ, तब फिर ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक मीन के लिए, इसमें क्या किया है, जो वेरिएबल है उसकी जितनी फ्रीक्वेंसी है वो एज ए पावर यूज कर ली है ना। तो देख रहे हैं x1 वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी अगर f1 है तो इसकी पावर x1 की पावर f1 फिर मल्टीप्लाई होगा, सॉरी सेकेंड वाला x2 है उसकी पावर f2, ठीक है, ये मिस्टेकनली लिखा हुआ है सेकेंड जो टर्म है, ठीक है, पहला x1 की पावर f1, ऐसे ही x2 जो दूसरा होगा उसका पावर f2 एंड लास्ट जो आएगा वो xn की पावर fn। इसका प्रोडक्ट किया, फिर क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आएगा लास्ट वाला कैपिटल है उतना वाला रूट आपको निकालना, ठीक है। तो ये इसमें लॉग लेने से ये थोड़ा सा सिंपल हो जाता है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये इसका, फिर आपको कैपिटल जी की वैल्यू निकालनी है तो लॉग को फिर एंटी लॉग लेना पड़ेगा, है ना, दोनों साइड, तब आपको कैपिटल जी का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट है बट बहुत ज्यादा उसमें आपको मैनुअली नहीं करना है, केवल कॉन्सेप्ट समझना है कि इसका इंपॉर्टेंस या यूज कहाँ पे ये होता है, ठीक है। तो इसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स यूजेस में देख लेते हैं। इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये इसका मेरिट है, ये अच्छी चीज है कि सारे ऑब्जर्वेशंस में ये इन्वॉल्व रहता है या सारे ऑब्जर्वेशंस को इन्वॉल्व करता है। फिर इट इज नॉट मच अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग, जैसा हम लोगों ने अभी उसके बारे में बात किया था मीन के बारे में। डीमेरिट्स में यही है कि इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव वैल्यूज इज ऑड। जैसे 3 नंबर में एक नंबर अगर नेगेटिव नंबर है और 2 पॉजिटिव नंबर है तो फिर आप ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना। तो ये इसका ड्रॉबैक कह सकते हैं, डीमेरिट कह सकते हैं। यूज में ये है कि ये आपका रिलेटिव चेंजेस के लिए या एवरेज रेट ऑफ पॉपुलेशन वगैरह जो कैलकुलेट करना होता है उसके लिए ये मोस्ट सुइटेबल है, इसी का यूज होता है ज्योमेट्रिक में, ठीक है। इंडेक्स नंबर एक इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो उसके कंस्ट्रक्शन में इंडेक्स नंबर जब हम लोग स्टडी करते हैं स्टैटिस्टिक्स में तो भी हमको ज्योमेट्रिक मीन्स का यूज करना। ये लास्ट इसका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का हार्मोनिक मीन, इसमें हम लोग हार्मोनिक मीन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंपल अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। इसका अपना एडवांटेज या इंपॉर्टेंस है, वो क्या है, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। वो ये है कि अभी आप देख रहे हैं इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में क्या है कि ये 1/x की जनरली वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहा है। देखो ओरिजिनल हमारे पास डेटा दिया हुआ है x1 x2 अप टू xn, लेकिन इनवर्स वैल्यूज को लेकर के इसका कैलकुलेशन दिख रहा है ना। तो इनवर्स में क्या होता है कि जो वैल्यूज बड़ी थी वो छोटी हो गई, है ना। तो इसको कहते हैं कि ये जो स्मॉलर वैल्यूज को लार्ज वेटेज दे देता है और लार्ज वैल्यूज को स्मॉलर वेटेज दे देता है ना। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जरूरत है। तो इसमें आप देखें जो हार्मोनिक मीन एच लिखा हुआ है, दिस इज सिंपली यू कैन से एच इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन समेशन लास्ट वाला नीचे सबसे नीचे समेशन एफ बाई एक्स,
तो इसमें क्या किया, जो x का जगह हम लोगों ने 1/x किया और फिर फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई किया उसमें, है ना। ये आप देख रहे हैं सेकंड में, इसको आप 1/h माने। सेकंड ये फॉर्मूला देख रहे हैं आप, हार्मोनिक मीन जहां लिखा हुआ है, हार्मोनिक मीन के साथ में जो h लिखा है उसको बेसिकली आप 1/h टेक करिए। नीचे वाला फॉर्मूला देखें, h लिखा हुआ है तो जस्ट उसका रिवर्स करके वो बनाएगा, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, जस्ट देखें, हम लोगों ने जो नंबर्स दिए हैं उसका इनवर्स निकाला और उसका अर्थमेटिक मीन निकाला, ठीक है। जो नंबर्स दिए हैं उनका इनवर्स निकाला और फिर उसका अर्थमेटिक मीन निकाला, तो वो जो आएगा वो 1/h के बराबर हो। अर्थमेटिक मीन जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1/h, ठीक है। और फिर उसको जब h निकालना होगा तो वो रिवर्स हो जाएगा, n ऊपर पहुंच गया और वो वाला नीचे, समझ गए ना। इसमें एक मिस्टेक है, जो h दूसरे वाले हार्मोनिक मीन के साथ लिखा है वो बेसिकली 1/h लास्ट वाला करेक्ट, ठीक है। अब देखें मेरिट्स डिविडेंड में, इट इज बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन, इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है जहां पे यही यूज होता है हार्मोनिक मीन। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कुछ डिस्टेंस चलते हैं एक पर्टिकुलर स्पीड से, फिर आगे फर्दर कुछ दूसरी डिस्टेंस चलते हैं कुछ दूसरे पर्टिकुलर स्पीड से, ठीक है। फिर जब हम इनका एवरेज स्पीड निकालते हैं तो फिर हमको हार्मोनिक मीन का ही यूज करना, ठीक है। तो इस तरह के केसेस में ये मोस्टली यूज होता है। इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, इट गिव्स अ वेरी हाई वेटेज टू स्मॉल वैल्यूज, स्मॉल वैल्यूज को लार्ज वेटेज देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा हार्मोनिक मीन का डिस्कशन हो गया। ये सब हमने अभी तक जो डिस्कशन किया है वो हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब अभी तक जो डेटा की फर्स्ट प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं देखते हैं किसी भी डेटा सेट में, वो हमारा ये सेंट्रल टेंडेंसीज की वैल्यूज को ऑब्जर्व करते हैं देख। फर्स्ट जो हमारा अटेम्प्ट होता है, कोई भी डेटा हमको मिला है उसमें सबसे पहला हम लोग उसकी सेंट्रल वैल्यूज के बारे में देख करके उस डेटा के बारे में आइडिया लेते हैं कि वो डेटा किस तरीके का है, किस पर्पज के लिए। अब चलते हैं दूसरा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में हम लोग ये आप कह सकते हैं दिस इज नेक्स्ट टू द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जब आपको उसकी एवरेजेस या अर्थमेटिक मीन या मीडियन जो भी आपने उसमें अप्रोप्रिएट समझा डेटा में कैलकुलेट किया सेंट्रल वैल्यू, ठीक है, तो वो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आपने देख लिया डेटा। द नेक्स्ट वन इज उसका डिस्पर्सन या वेरिएशन उस डेटा के अंदर कैसा, ठीक है। डिस्पर्सन और वेरिएशन अल्टरनेटिव भी हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे रफली हम बात करें कि इसके अंदर ऐसी क्या चीज है जो पिछले वाले में नहीं थी, मतलब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो चीज नहीं आई है वो इसमें आने वाली। तो इसमें क्या है कि वेरिएबल जो हमने लिए हैं डेटा में या हमारे पास जो डेटा गिवन है उसकी सेंट्रल वैल्यू के बारे में तो स्टडी कर लिया। अब हमको ये देखना है कि बाकी जो वेरिएबल या ऑब्जर्वेशन हमारे पास डेटा में है वो उस सेंट्रल वैल्यू के रिस्पेक्ट में किस तरीके से स्कैटर्ड मीन कि वो सेंट्रल वैल्यू के अराउंड ही लगभग सारे ऑब्जर्वेशन आपको मिल रहे हैं या कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि जो बहुत दूर से जा रहे हैं और कुछ उसके बहुत पास में है। इस चीज को हम लोग स्कैटर्डनेस बोलते हैं। और ये सारी चीजें वेरिएशन या स्कैटर्डनेस जो है वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के अंदर, ठीक है। तो इसमें देखें द वर्ड डिस्पर्सन इज यूज्ड इन टू सेंसेस। दो तरीके से हम लोग इसको स्टडी करते हैं या इसका मीनिंग निकालते हैं।
पहला क्या है, स्कैटर्डनेस ऑफ वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल ड्यू टू वेरिएशन अमंग देमसेल्फ। मतलब जो वैल्यूज हमको डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं वो आपस में कैसे एक दूसरे से बड़ी वैल्यूज है छोटी वैल्यू, ठीक है, तो उन वैल्यूज के रिस्पेक्ट में या कंपैरिजन में एक दूसरे में किस तरीके की स्कैटर्डनेस या डिफरेंसेस। दूसरे सेंस में जब हम बात करते हैं तो डेविएशन फ्रॉम अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब उसकी जो सेंट्रल वैल्यू आई है उसके रिस्पेक्ट में जो गिवन ऑब्जर्वेशंस की वैल्यूज कितनी डेविएटेड है, कुछ की बहुत ज्यादा होगी, कुछ की बहुत कम होगी। तो इन दोनों सिनेरियोज को हम लोग जनरली स्कैटर्डनेस या फिर वेरिएंस में या डिस्पर्सन में इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन चलता है कि दो बैट्समैन हैं, ठीक है, उनका एवरेज सेम आ रहा है, मतलब 10 पारियों में दोनों बैट्समैन का देखा तो एवरेज दोनों का इक्वल आ गया। तो जब दोनों का एवरेज इक्वल आ गया तो फिर क्या होगा कि आप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आप जज नहीं कर सकते हैं कि कौन सा बैट्समैन अच्छा है कौन सा खराब है, क्योंकि दोनों के एवरेज बराबर आ रहे हैं वैल्यू, तो आप तो कहेंगे कि दोनों एक ही लेवल के हैं, है ना। अगर जो सेंट्रल टेंडेंसी का वैल्यू है, जैसे एक का मीन ज्यादा आ रहा है एक का मीन कम आ रहा है, तो आप कहेंगे भाई जो ज्यादा रन बना रहा है उसका मीन ज्यादा आ रहा है तो वो अच्छा बैट्समैन है। लेकिन कई बार इससे नेक्स्ट लेवल पे देखने के लिए, जैसे मीन दोनों के बराबर आ रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट आपको उसका वेरिएंस देखना है या डिस्पर्सन देखना। तो वेरिएंस या डिस्पर्सन क्या करेगा, ये वो चीज मेजर करेगा कंसिस्टेंसी, कि कौन सा प्लेयर है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर, और कौन सा ऐसा है कि किसी मैच में एकदम 0 पे चला जाता है और किसी मैच में सीधा 200 बना देता है ना। तो ये एक कंसिस्टेंसी उसके अंदर नहीं है ना। और एक जो है कि मान लो 50-60 ही बनाता है लेकिन लगभग सब मैचेस में वो उसी के अराउंड चलता है, वो मोर कंसिस्टेंट हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसमें बात करेंगे अभी। फर्स्ट जो इसका मेजर है डिस्पर्सन का वो है रेंज। रेंज में सिंपली आप क्या करते हैं, जो डेटा पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू और उसकी लार्जेस्ट वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, और उसी से एक रफ आइडिया आप लोग लगा लेते हैं कि ये वाला जो डेटा सेट है इसका रेंज कितना आ रहा है और दूसरा वाला डेटा सेट है उसका रेंज कितना है ना। तो यहाँ पे रेंज जो है एक मेजर ऑफ डिस्पर्सन है जो केवल फर्स्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को यूज करता है, और एक मेजर ऑफ डिस्पर्सन जिसको हम लोग रेंज बोलते हैं ये कैलकुलेट करता है। अब दो डेटा सीरीज हैं, दोनों का अगर आप देखें रेंज, एक का रेंज मान लीजिए 100 आ रहा है, एक का रेंज 1000 आ रहा है, हो सकता है ना ऐसा। तो अब हम लोग रेंज के कॉन्सेप्ट पे ही अगर डिसाइड करेंगे कौन सा डेटा सेट अच्छा है कौन सा डेटा सेट अच्छा नहीं है ना। तो ये जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है इसमें जनरली हम लोग कम वेरिएशन वाले को प्रेफरेंस देते हैं, अच्छा मानते हैं, मतलब जिसका रेंज कम है वो अच्छा डेटा, जिसका रेंज ज्यादा है वो अच्छा डेटा नहीं, कंपेरेटिवली उसकी हम बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे रफली हम लोग ये देखते हैं कि जिसका रेंज 0 to 100 है, मतलब मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन या सभी ऑब्जर्वेशन इसी रेंज में लाई कर, और जिसका रेंज 0 to 1000 गया मतलब उसके कुछ डेटा 1000 भी हो सकते हैं या कुछ डेटा सेट 0 के अराउंड भी हो सकते हैं, है ना। तो ये रेंज एक रफ मेजर है इसका। इससे और नेक्स्ट लेवल के जो मेजर्स हैं, नेक्स्ट इसमें आता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन ये जो मेजर है, इसीलिए हमने आपको क्वार्टाइल्स के बारे में वहां डिस्कस किया था कि ये जो है मीडियन के साथ ही हम लोग क्वार्टाइल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये जो क्वार्टाइल डेविएशन है ये मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, ये बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्स है, ठीक है। तो दिस इज सिंपली डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ क्वार्टाइल्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इसको क्वार्टाइल डेविएशन बोलते हैं। और ये भी डिस्पर्सन को या स्कैटर्डनेस को या वेरिएंस को आप कह सकते हैं कि उसको एक आइडिया देता है
क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, ये रेंज से तो बेटर है, तो रेंज में जो आइडिया लगता है उससे इसमें आपको और आप एक्यूरेसी लेवल की तरफ चलें। अब नेक्स्ट इसमें हमारा एवरेज या फिर मीन डेविएशन, ये आप नेक्स्ट थर्ड आप कह सकते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। इसमें क्या है कि जो डेविएशन हम लोगों ने निकाला था पिछले मीन के केस में, डी वैल्यू जो निकाली थी, ये क्या करता है, एक्चुअल जो डेटा वैल्यूज है उसको किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से डेविएशन निकालते हैं और फिर उस डेविएशन का हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस ले लेते हैं। मॉडुलस मतलब नेगेटिव साइन को हटा देते हैं और सारे को पॉजिटिव साइन की तरह ट्रीट करते हुए फिर उसका हम लोग एवरेज मीन निकालते हैं या अर्थमेटिक मीन जिसको अभी हम बात कर रहे थे वो निकालते हैं। तो वहां से भी क्या एक आइडिया आपको मिल जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं मीन डेविएशन अबाउट ए नंबर ए या फिर एवरेज डेविएशन अबाउट ए नंबर ए। ठीक है, अभी हमने ए को ना स्पेसिफाई किया कि वो क्या चीज है, वो मीन भी हो सकता है अर्थमेटिक मीन, या मीडियन भी हो सकता है, या मोड भी हो सकता है, या कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज एवरेज और मीन डेविएशन अबाउट ए नंबर ए। ठीक है, अब इसमें जो हमको आइडिया लगेगा वो हमको डिस्पर्सन का या स्कैटर्डनेस का, पिछले दो जो मेजर्स थे रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन उससे ज्यादा या बेटर आइडिया हमको इससे लगे। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ए का वैल्यू अर्थमेटिक मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है। अब नेक्स्ट जो हम लोग मोस्ट वाइडली यूज मेजर है जो डिस्पर्सन का, वो हम लोग इसके जस्ट अगली स्लाइड में चल रहे हैं। तो वहां पे क्या होगा कि ये जो डेविएशन हमने निकाला है इसमें हमने मॉडुलस वैल्यूज यूज किया है ताकि नेगेटिव वैल्यूज को हटा दें उसमें, है ना। तो एक काम और हो सकता था कि इसके हम मॉडुलस लेने की जगह स्क्वायर भी कर सकते थे। जो डेविएशन आ रहा है ना, जैसे x माइनस ये लिखा, तो अभी हमको मोड लेना पड़ा नेगेटिव वैल्यू को एक्सक्लूड करने के लिए, और हम स्क्वायर भी कर सकते थे तो भी हमारा नेगेटिव वैल्यू एक्सक्लूड हो जाएगा, है ना। तो जो नेक्स्ट है उसमें हम मीन स्क्वायर डेविएशन की बात करेंगे। ये हो गया मीन डेविएशन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मीन स्क्वायर डेविएशन एंड वेरिएंस। अब देखें मीन स्क्वायर डेविएशन क्या चीज है। अभी जैसे हमने बात किया था कि आप वो जो डेविएशन ले रहे हैं वो किसी ए नंबर के अबाउट ले रहे हैं, है ना। तो उस ए का या तो हम मॉडुलस ले लें तो पॉजिटिव वैल्यूज मिल जाएंगी, या फिर स्क्वायर कर दें तो पॉजिटिव सारी वैल्यू हो जाएंगी, क्योंकि डेविएशन कुछ नेगेटिव भी आ सकते हैं, है ना। तो ये जो मीन स्क्वायर डेविएशन है ये एवरेज डेविएशन की तरह है, बट इसमें स्क्वायर को यूज किया है ना। तो इसमें स्क्वायर का मीन निकाला गया है और पिछले केस में आपने सिंपली उसके मॉडुलस या पॉजिटिव वैल्यूज को लेकर के अर्थमेटिक मीन निकाला। अब ये जो वेरिएंस है नेक्स्ट वाला, इसमें आप जनरली देखेंगे जो आउटपुट्स आते हैं कंप्यूटर से या स्पेसेस में, अभी आप लोग करेंगे जब हैंड्स ऑन, तो जैसे मीन मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग वहां मेजर यूज करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, वैसे ही यहाँ पे वेरिएशन के या स्कैटर्डनेस के केस में हम लोग ये वाला वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर। तो ये जो सिग्मा स्क्वायर है जिसको हम लोग वेरिएंस बोल रहे हैं, और ये जो मीन स्क्वायर डेविएशन है, इन दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जब आप डेविएशन अर्थमेटिक मीन से लेंगे तो वो चीज वेरिएंस कहलाएगा। डेविएशन किसी अदर नंबर से लेंगे अदर देन अर्थमेटिक मीन तो फिर वो आपका मीन स्क्वायर डेविएशन है। ठीक है, तो मीन स्क्वायर डेविएशन और वेरिएंस ये दोनों मिलते जुलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि जो डेविएशन आप ले रहे हैं, जिस वैल्यू से डेविएशन ले रहे हैं, अगर वो अर्थमेटिक मीन है
तो जो मीन स्क्वायर डेविएशन है वही आपका वेरिएंस कहलाने लगेगा। और एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन के केस में कि इसके स्क्वायर्स का सम मिनिमम होता है, लीस्ट होता है। वो चीज यहाँ पे काम करेगी कि ये जो वेरिएंस निकाल रहे हैं हम लोग, ये मीन स्क्वायर डेविएशन से हमेशा कम आए। मीन स्क्वायर डेविएशन में किसी भी नंबर से डेविएशन लिया अदर देन मीन, तो ऑब्वियसली वो वैल्यू ज्यादा आएगी। और जब मीन से डेविएशन लिया तो उसके स्क्वायर का सम लीस्ट आएगा। इसीलिए हम लोग इसमें एक रिलेशन भी देख लेते हैं। ये करस्पॉन्डिंग जो देख रहे हैं ना, रूट मीन स्क्वायर, इसमें जस्ट हमने दोनों जो डिस्कस किए थे मीन स्क्वायर डेविएशन उसका रूट ले लिया, तो ये रूट मीन स्क्वायर डेविएशन हो गया। और जो वेरिएंस था उसका रूट ले लिया, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस का यूज करें या स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करें, ये जस्ट एक दूसरे से बनते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका स्क्वायर कर दो तो वेरिएंस बन गया, वेरिएंस से उसका स्क्वायर रूट ले लिया तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया। ठीक है, तो ये जो रूट मीन स्क्वायर डेविएशन है वो मीन स्क्वायर डेविएशन से ही निकला है, ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन है ये वेरिएंस से ही निकला है। तो इसमें और उसमें बहुत ज्यादा कंसेप्चुअली कोई अंतर नहीं है, केवल आपने स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, अब ये रिलेशन आप याद रख सकते हैं, जो एस स्क्वायर है ये मीन स्क्वायर डेविएशन है और सिग्मा स्क्वायर है ये वेरिएंस है। तो एस स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब जनरली तो वो ग्रेटर रहता है, बट अगर डी का वैल्यू डी जो है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे डी क्या चीज है, यहाँ पे बेसिकली जो नंबर आपने डेविएशंस के लिए सपोज कैपिटल ए यूज किया है और अर्थमेटिक मीन, तो उनका जो डिफरेंस है वो यहाँ पे डी है। ठीक है, तो इसको जस्ट आप ऐसे याद रखिए कि जो एस स्क्वायर है जिसको हम लोग मीन स्क्वायर डेविएशन बोल रहे हैं, दैट इज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। डी की वैल्यू ज्यादा से मतलब लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, 0 होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप सिमिलरली एस और सिग्मा में देख सकते। ठीक है, एस स्क्वायर में जो रिलेशन है सिग्मा स्क्वायर में, वैसे ही रिलेशन एस और सिग्मा में भी आप ऑब्जर्व करते हैं। उस पर सर चलेंगे ना तो थोड़ा सा हम लोग फिर सैम्पलिंग के उसमें जाना पड़ेगा। जनरली होता क्या है, वो जो n-1 आता है ना, वो एक प्रॉपर्टी होती है या कॉन्सेप्ट होता है एक्सपेक्टेशन का कॉन्सेप्ट, है ना। तो जब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग चलते हैं तब वो एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉपुलेशन के पैरामीटर के वैल्यू के प्लेस पे हमको जब यूज करना होता है, तो उस केस में जो सुटेबिलिटी हमको बनती है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग n-1 यूज करते हैं। थोड़ा सा वो कंसेप्ट जो है ना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से निकल के आता है। अभी इस सिंपल जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का डिस्कशन है इसमें अभी हम लोग उसको इन्वॉल्व नहीं किए हैं, इसीलिए नहीं किए हैं कि फिर कंफ्यूजन बढ़ जाएगा और उतना टाइम मिलेगा नहीं कि हम उसको एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, तो अभी आप इसको हम लोग सिंपल ये मान के चल रहे हैं कि जो है वो सीधा सा एन यूज करता है। तो इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम लोग थोड़ा सा रिलेटिव मेजर्स में और चलते हैं। ये रिलेटिव मेजर्स जस्ट जो पहले हमने डिस्कशन किया है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, उसी से मिलते जुलते हैं। केवल इसका यहाँ पे प्रेजेंट करने का या डिस्कस करने का आइडिया जो है वो ये है या इसलिए है कि ये जो रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है ये यूनिट फ्री आते हैं। इनकी कैलकुलेशन जो इस तरीके से फॉर्मूलेज वगैरह इसके बनाए गए हैं कि जिसमें हमको यूनिट खत्म हो जाता है, यूनिट नहीं रहता है। उससे फायदा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्टडी है वो हाइट से रिलेटेड है, ठीक है, कोई स्टडी है वो वेट से रिलेटेड है। तो दो स्टडी हैं
एक हाइट से रिलेटेड है, एक वेट से रिलेटेड है, तो उन दोनों को आप केवल मीन निकाल के या वेरिएंस निकाल के कंपैरिजन नहीं कर सकते, है ना। जैसे वेट में हम लोग देखते हैं, हम ही लोगों का वेट है, वेरिएशन ज्यादा रहता है, किसी का 50 kg, किसी का 100 kg। हाइट में कंपैरेटिवली उतना वेरिएशन नहीं रहता है। तो जस्ट ये रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है, ये उन्हीं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन से कंस्ट्रक्ट किए गए हैं फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग कंपैरिजन फॉर द टू डेटा सेट और डिफरेंट डेटा सेट विच आर हैविंग डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है, तो इसमें भी 3-4 हम लोग वैसे ही हैं जैसे कि पिछले उसमें पढ़े हैं, बट ये सब उसी से फ्रेम हुए हैं। ठीक है, ये रेंज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन है, तो इसका x मतलब वेरिएबल की जो मैक्सिमम वैल्यू माइनस वेरिएबल की मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय x मैक्सिमम प्लस x मिनिमम। जैसे फर्स्ट रेंज निकाले थे उसी से ये रेंज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन हमारा बना है। सिमिलरली क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन, ये क्वार्टाइल जैसे डेविएशन था दूसरा वाला, ये उसी लाइन पे इससे बना है। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिस्पर्सन, मीन डेविएशन हम लोगों ने पढ़ा था, ये उसी से ये मीन डेविएशन अबाउट एनी पॉइंट ले और उस पॉइंट को यूज करके कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिस्पर्सन ये बना हुआ। ठीक है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अक्सर आप जो हैंड्स ऑन करेंगे या जो भी आप डेटा सेट को लेकर के कंपैरिजन या स्टडी करते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है आपको जरूर देखना होता है या उससे बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। ठीक है, तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ये बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन और जो अर्थमेटिक मीन है इनका रेशियो करके हम लोग लेते हैं, और इसको हम लोग मोस्टली परसेंटेज में भी डिनोट करते हैं। अभी हमने इसमें परसेंटेज नहीं लिखा है, बट ये आप देखेंगे बहुत सारे आउटपुट्स में ये परसेंटेज में बन के या निकल के आता है। तो परसेंटेज में कुछ नहीं करना है, इसका जो वैल्यू आएगा उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही चीज परसेंटेज में आपको मिल जाएगा, है ना। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड रिलेटेड measure of dispersion and generally expressed in percentages. Its lower value is indication of betterness मतलब अच्छा जो डेटा सीरीज या वो आपको चाहिए है वो जिसका ये कम आए। वो जो अभी हमने कंसिस्टेंसी वाले आपसे डिस्कस किया था वो इस चीज से एक नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने दिया हुआ है वही चीज है। वो बैट्समैन आप देख रहे हैं उनके रन स्कोर्स आपको दिए हुए हैं, इनमें आपको दो चीजें निकालनी है कि विच ऑफ द टू बैट्समैन इज बेटर रन स्कोर। ठीक है, विच ऑफ द टू बैट्समैन हैज मोर कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी में जाएंगे तो आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से देखेंगे, और इसमें बेटर देखना है तो जिसमें ज्यादा एवरेज या टोटल रन किए होंगे उसी का एवरेज भी अच्छा होगा, तो आप उस एंगल से फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं मीन के एंगल से, सेंट्रल टेंडेंसी के एंगल से, और सेकंड वाले में आपको कंसिस्टेंसी में जाना है तो ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की साइड से जाना। ठीक है, अब ये थर्ड हमारा मतलब दो कैरेक्टरिस्टिक हमने डेटा की देख ली है। पहली उसकी हम लोग सेंट्रल वैल्यूज या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे फोकस करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक या उसका आइडिया डेटा का जो फर्स्ट हैंड लगाते हैं वो उससे लगाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक या आइडिया अबाउट द डेटा कम्स फ्रॉम द मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन या इट्स वेरिएशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। इसके अंदर हम लोग जो स्क्यूनेस और कर्टोसिस है, अभी तक हमने दो चीजें देख ली है कि उसकी मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू किस तरह की आ रही है, दूसरा देख लिया कि उसमें वेरिएशन किस तरीके का है, स्कैटर्डनेस किस तरीके का है। अब जो तीसरी चीज आती है,
किसी भी डेटा सेट के बारे में आइडिया जो हमको लेना है या देखना है कि अच्छा हमारा जो डेटा सेट है दैट इज सुटेबल फॉर द फर्दर यूज ऑफ स्टैटिकल टूल्स, जिनको हमको आगे और भी स्टैटिकल टूल्स आप पढ़ेंगे जिनको अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए ये सब बेसिक्स हैं कि जो आपको ऑब्जर्व पहले करने हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर आप आगे के जो भी टेक्निक्स आपको यूज करने हैं लगाने हैं वो फिर इससे आगे चले। तो इसमें क्या है, मेनली दो चीजें हैं इसमें, एक टर्म है स्क्यूनेस और एक टर्म है कर्टोसिस। स्क्यूनेस में आप जनरली ये देखते हैं कि वो डेटा सिमेट्रिकल से कितना डेविएटेड है। सिमेट्रिकल से डेविएटेड का मतलब ये है कि आप एक वेल शेप्ड कर्व होता है, अगर आप लोगों ने देखा हो, नाम सुना हो, अदरवाइज हम तो बता ही गए इसमें। तो ये जो है कि स्क्यूनेस क्या करता है, ये डेविएशन फ्रॉम द सिमेट्री, मतलब एक सिमेट्रिक हिस्टोग्राम आप लोगों ने कर चुके हैं लास्ट क्लास में, हिस्टोग्राम बना चुके हैं ना लास्ट क्लास में। तो हिस्टोग्राम में आप जो रेक्टेंगल्स बनाते हैं, है ना, बनाते हैं ना क्लासेस के करस्पॉन्डिंग, तो उसके ऊपर एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाते हैं, है ना, फिर एक उसमें फ्रीक्वेंसी कर्व, एक फ्री हैंड कर्व बनाते हैं, है ना। तो जो फ्री हैंड कर्व आप बनाते हैं वो बेसिकली एक वेल, देखो पीछे लगा हुआ है, आप उसको देख सकते हो, लास्ट में जो सामने हमारे जो दिख रहा है ना, वो ऐसे बनाया हुआ है ना, उसी टाइप के कर्व की हम बात करें, ठीक है, वेल शेप्ड कर्व। ठीक है, ठीक है, अभी हम आगे चलेंगे, इसमें आपको मिलेगा। तो स्क्यूनेस क्या है, एक सिमेट्री से डेविएशन है अगर, तो उसको मेजर करता है। सिमेट्रिक है दैट इज बेस्ट वन, वही हमको चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टैटिकल टूल्स जो हम लगाते हैं या लगाने हमको, उसके लिए अगर डेटा में सिमेट्री है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा होता नहीं, डेविएशन हमेशा सिमेट्री से मिलता ही है। तो वो डेविएशन कम हो, बहुत ज्यादा डेविएशन ना हो। एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमने अभी कहीं पहले टर्म आया था, एक एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन, एक डिस्कशन किया था। तो वहां पे क्या था कि मॉडरेटली एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बहुत ज्यादा आपका एक साइड उसकी स्क्यूनेस नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखें, स्क्यूनेस मींस लेक ऑफ सिमेट्री। If frequency distribution is said to be symmetrical when the values equidistant from the mean have equal frequencies. अब स्क्यूनेस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसी चीज को हम लोग मेजर भी करेंगे। तो इसके कुछ मेजर्स पे बात करेंगे कि उन मेजर से हमको आइडिया लगेगा कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है, और अगर स्क्यूनेस 0 है तो वो सिमेट्रिक है। ये फर्स्ट कोफिशिएंट है जो स्क्यूनेस को मेजर करता है, और ये बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्स है। क्वार्टाइल्स हम लोगों ने पढ़े हैं, तो ये क्वार्टाइल्स बेस्ड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है। इसमें आप देख रहे हैं Q3 Q1 इन्वॉल्व है, और मीडियन लिखा हुआ है, इसकी जगह हम Q2 भी लिख सकते थे, तो सारा का सारा ये क्वार्टाइल्स हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो मेजर ऑफ स्क्यूनेस है, वो इससे आप स्क्यूनेस का आइडिया लेते हैं कि स्क्यूनेस उसके अंदर है या नहीं, इस कोफिशिएंट से। अब इसके बाद नेक्स्ट दूसरा भी मीन और मोड और मीडियन पर बेस्ड, जो ज्यादा समझ में आएगा, या आप कह सकते हैं कि मोर सिंपल है, क्योंकि क्वार्टाइल्स में जाएंगे तो उसके फॉर्मूले से पहले क्वार्टाइल्स निकालने पड़ेंगे, है ना। इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक सेकंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस ऑफ मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर उसी के नीचे 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भी हम लोग स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। अभी हम लोग ग्राफ में देखेंगे ना, तो सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, उसमें बना होगा कि कहाँ पे मीन आ रहा है, कहाँ पे मीडियन आ रहा है, तो कैसे आप उसको स्क्यूनेस में ऑब्जर्व करते हैं। ये देखें स्क्यूनेस को, ये आप देख रहे हैं जनरली दो तरीके से स्क्यूनेस हमने कहा अभी,
कि या तो नेगेटिवली स्क्यूड होगा, तो आप कह सकते हैं सिंपली जो लेफ्ट हैंड साइड का टेल है वो उसका ज्यादा लंबा होगा, तो ये लेफ्ट स्क्यूड या नेगेटिव स्क्यूडनेस इसके अंदर है। और जो दूसरा है वो राइट वाला राइट स्क्यूड है या पॉजिटिव स्क्यूनेस इसके अंदर है। तो अब इसमें देखो लोकेशन से आप देख सकते हैं जनरली होता क्या है कि मीन जो है वो आप बीच में ही रखें, ठीक है। बीच का मतलब कि आप जो एक्स एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल जो लाइन ले रहे हैं, ठीक है, उसमें जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं टोटल, उसके अकॉर्डिंगली आप देख पा रहे हैं इसमें कि मीन जो है वो लगभग बीच में है, ठीक है। अब मोड जो है वो इस तरफ या उस तरफ चला जाए, उसकी हाइट जो ग्राफ की बनी है वो देख रहे हैं आप, है ना। मोड क्या है, वो पीक जो हाइट जो बात करते हैं ना वो उसका मोड है, मोड वैल्यू, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वो उसका मोड है। तो आप मोड देख रहे हैं कि जो लेफ्ट स्क्यूड है या नेगेटिव स्क्यूड है उसमें मोड इस तरफ है और मीन इस तरफ है, और जो दूसरा वाला है उसमें मोड इधर आ गया और मीडियन हमेशा इन दोनों के बीच में ही जनरली रहता है। तो इसमें आपको जस्ट टेल से भी आप समझ सकते हैं कि जो राइट टेल अगर ज्यादा लंबा जा रहा है तो वो राइटली स्क्यूड या पॉजिटिवली स्क्यूड, और लेफ्ट टेल अगर लंबा जा रहा है तो वो लेफ्ट या नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है। ये भी उसी तरीके से है। देखो बीच वाला जो है वो हमारा नॉर्मल कर्व जिसको हम लोग बोलते हैं, या नो स्क्यूनेस का केस जिसको हम लोग बात करते हैं, वो बीच वाला जो ग्राफ है ये हमारा, इसमें स्क्यूनेस 0 है या इसमें स्क्यूनेस है ही नहीं, ठीक है। और बाकी दो नेगेटिवली स्क्यू, पॉजिटिवली स्क्यू। अब कर्टोसिस, तीन करेक्टरिस्टिक हमने देख लिए डेटा की। एक उसकी सेंट्रल वैल्यू से आइडिया लगा, दूसरा उसके डिस्पर्सनेस से आइडिया लगा, तीसरा स्क्यूनेस से भी हमको कुछ और चीजें पता चली। अब ये कर्टोसिस फोर्थ वन है, और आप हम लोग इसी को कंप्लीट करने के बाद ये खत्म करेंगे, ठीक है। तो कर्टोसिस में क्या है, जैसे एक एक चीज से चल रहे थे कि मीन से अगर हमको आइडिया दो चीजों में डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ तो हमने वेरिएंस को फिर देखा, वेरिएंस से भी अगर वो चीज आइडेंटिफाई नहीं हुई तो फिर हम स्क्यूनेस पे चले गए, वहां से भी तीनों चीजों से भी हमको और अच्छा आइडिया चाहिए तो फिर हम लोग कर्टोसिस भी देखेंगे, ठीक है। तो कर्टोसिस क्या है, करेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू या विद द नेचर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द आइटम्स इन सेंट्रल पार्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि ये जो सेंट्रल पार्ट है उसका या उसमें जो ऑब्जर्वेशंस है या फ्रीक्वेंसीज किस तरीके से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो कर्टोसिस जनरली अभी जो कर्व हम लोग ने देखे थे इसकी हाइट से रिलेटेड है। नॉर्मल जो कर्व था ये वाला, ये एक हम लोग स्टैंडर्ड हाइट का रखते हैं। तो ये हमारा जो कर्टोसिस के केस में है वो हमारा इस हाइट के लेवल पर रहता है। तो इसी को हम एक स्टैंडर्ड मानते हुए, या तो इससे पीकनेस बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी, या फिर इससे कम होगी, है ना। तो उसी चीज को मेजर करते हैं हम लोग इस कर्टोसिस के अंदर। कर्टोसिस में यही चीज हमको मेजर करना है कि हाइट या जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो किस तरीके से आ रही है। तो इसमें देखो ये जो ग्राफ बना हुआ है बीच वाला ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है, आप कह सकते हैं कि इसमें कर्टोसिस नहीं है या ये एक स्टैंडर्ड लाइन है। इसी तरीके से जो ज्यादा पीक हो जा रहा है या ज्यादा हाइट में जा रहा है वो हमारा पॉजिटिव कर्टोसिस के साथ है, और जो फ्लैट रह जा रहा है ना, इन्हीं तीन कर्व को हम लोग, बीच वाला है उसको मीजोकर्टेक्स, और जो टॉप हाइट वाला है जिसको पॉजिटिव कर्टोसिस, इसको लेप्टोकर्टेक्स, और नीचे जो नेगेटिव कर्टोसिस लिखा हुआ है इसको फ्लैटी कर्टेक्स, फ्लैट जो बन रहा है। इन तीन चीजों को हम लोग कर्टोसिस के अंदर मेजर करते हैं। अब इसमें लास्ट हम लोग कॉन्सेप्ट है, 5-7 मिनट और लगेगा,
ये जो स्क्यूनेस और कर्टोसिस अभी हम लोगों ने ऑब्जर्व किए, पर्टिकुलरली कर्टोसिस में अभी कोई कोफिशिएंट इसका नहीं आया है कि जिसको हम लोग मेजर करें। तो मूवमेंट एक टर्म है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा कि सिंपल डेविएशंस का मीन निकाला, फिर मीन स्क्वायर डेविएशन में हमने स्क्वायर्स का मीन निकाला, है ना। ऐसे ही मूवमेंट एक जनरल टर्म है जिसमें हम लोग किसी भी पावर, डेविएशन की किसी भी पावर का मीन निकालते हैं। जैसे डेविएशन का सेकंड पावर का अगर हम लोग मीन निकालना है तो वो हमारा हो जा रहा है क्या, मीन स्क्वायर डेविएशन, है ना। ऐसे अगर हम डेविएशन की थर्ड पावर लें और फिर उसका मीन निकालें, या फोर्थ पावर लें, ऐसे nth पावर में जाते हैं, तो ये जो बेसिकली मूवमेंट टर्म है इसको हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ द nth पावर्स ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम एनी पॉइंट ए। यही चीज हमारा मूवमेंट है। ये पढ़ने के पीछे हमारा जो पर्पस है वो हम लोग कर्टोसिस का और स्क्यूनेस का कोफिशिएंट निकालने जा रहे हैं जिसमें कि ये मूवमेंट्स यूज हो। ठीक है, इसीलिए जस्ट एक स्लाइड हमने इसमें रखा है कि ये जो मूवमेंट्स हैं ये जनरली दो तरह के हम लोग पढ़ते हैं या दो तरह से हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं। एक होता है रॉ मूवमेंट। रॉ मूवमेंट मीन्स व्हेन यू आर टेकिंग द डेविएशन फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पॉइंट other than mean arithmetic, or the other term is central movement. So central movement when you are taking the deviations from the arithmetic mean particularly. ठीक है, तो movements you can say are of two type, one is raw movement, another is central movement. और रॉ मूवमेंट जनरली जब हम लोग डेविएशन जीरो के अराउंड लेते हैं तो रॉ मूवमेंट पर्टिकुलरली उस सेंस में है। अदरवाइज आप कह सकते हैं कि मूवमेंट्स अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जो भी पॉइंट आप यूज करेंगे तो वो मूवमेंट उस पॉइंट के अबाउट हो जाएगा। लेकिन जब आप मीन का वैल्यू का यूज करेंगे तो फिर वो सेंट्रल मूवमेंट। ठीक है, इसमें रिलेशन भी होता है बट हम लोग उस डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, कि मूवमेंट्स अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड सेंट्रल मूवमेंट, इनमें एक रिलेशन भी होता है जो एक से दूसरे में हम निकाल सकते हैं, बट अभी उसकी जरूरत हमको नहीं है। हम लोग इसके कोफिशिएंट पे चलते हैं जो हमको इम्पोर्टेंटली डिस्कस करने हैं। इसमें अब आप देखेंगे कि ये जो दो कोफिशिएंट है, पर्टिकुलरली बीटा 1 बिलोंग्स टू स्क्यूनेस और बीटा 2 बिलोंग्स टू कर्टोसिस। मतलब बीटा 1 से आइडिया स्क्यूनेस का लगेगा और बीटा 2 से आइडिया कर्टोसिस का लगेगा, है ना। वो इसमें और नीचे दिए हुए हैं गामा 1 और गामा 2, ये बेसिकली बीटा 1 से ही निकाला हुआ है और बीटा 2 से ही निकाला हुआ है। गामा 1 की इंपॉर्टेंस ये है कि कई बार आप देखेंगे कि जो स्क्यूनेस है वो नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, है ना। उस सेंस में आपको गामा 1 से आइडिया लगेगा कि नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर रूट की लेनी है या पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो आप स्क्यूनेस में जब देखेंगे, जैसे नेगेटिव स्क्यूनेस बोलना है तो आप ये कहेंगे कि इस गामा 1 की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आएगी तो वो नेगेटिवली स्क्यू होगा। गामा 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तो वो पॉजिटिवली स्क्यू हो जाएगी। और गामा 1 की वैल्यू 0 जो है स्टैंडर्ड जो है जिसमें स्क्यूनेस 0, ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग इसको ऑब्जर्व करें। सिमिलरली जो बीटा 2 है दैट इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ कर्टोसिस। तो कर्टोसिस में जैसे अभी हमने 3 कर्व देखे थे, इसमें भी गामा 2 इन्वॉल्व है बट वो बीटा 2 से ही रिलेटेड है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसका स्टैंडर्ड जो बीटा 2 की वैल्यू है वो हम 0 लेते हैं, सॉरी 3, बीटा 2 की वैल्यू 3 लेते हैं तो गामा 2, आप देख रहे हैं बीटा 2 -3 है तो ये 0 हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड जो नॉर्मल कर्व है कर्टोसिस के केस में मीजोकर्टिक जो आप देख रहे हैं ये वाला मीजोकर्टिक जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू गामा 2 की नहीं, बीटा 2 की वैल्यू ये 3 है, इक्वल टू 3, तो वो मीजोकर्टिक हो गया या स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व की हम जिसकी बात करते हैं। और जो लेस देन है वो प्लेटिकर्टिक है और ग्रेटर देन 3 है वो आपका लेप्टोकर्टिक। ठीक है, तो इस तरीके से आप
इनकी कर्टोसिस का जो मेजर है वो इसमें आ गया है। इसके लिए हम लोगों ने ये मूवमेंट्स बेस्ड स्क्यूनेस के और कर्टोसिस के दो मेजर्स डिस्कस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। आई होप आपको ये बेनिफिट देगा, और इसका एक्चुअल जो फायदा होगा वो तभी होगा जब आप इसको थ्योरी के साथ साथ हैंड्स ऑन अच्छे से करेंगे तो। क्योंकि आजकल मोस्टली तो आपको कैलकुलेट मैनुअली तो करना नहीं है ना, बट कॉन्सेप्ट हमने आपको डिस्कस किया है। और इसमें आप डिटेल में अगर देखना चाहें, पढ़ना चाहें, तो एक बुक है, इसमें आप और जाके डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। अब हम इसको कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।